Hello my dear friends, I am Professor Wayam Khan and this is the part 7 of unit number 4, transient and steady state response analysis. In this automatic control system subject, we are dealing with the transient and steady state response analysis unit, and in previous video we have covered the time domain specification, or you can say transient response specifications. So in today's video we are going to cover the derivations of these specifications, like we are going to see the derivation of delay time, the derivation of rise time, the derivation of peak time, peak overshoot and the settling time. And in next video we are going to deal with the numericals based on these derivations or based on these formulas. So let us begin. So this is the derivation of delay time. So at the end of you can say the derivation, we get the formula of delay time as Td is equals to 1 plus 0.7 delta upon omega n, where delta is the damping factor and omega n is the natural frequency, and Td denotes the delay time. So the delay time is the half, or you can say it is the 50% value of the total time taken for the response to reach the maximum value. So to reach the final value, okay, not maximum value, to reach the final value. Let us see the definition of delay time. So it is the time required for response to reach half of its final value. So that means if your final value is 1, so here its final value is 1, so the delay time will be 50% of this value. So that means 0.5 is the delay time. So this point here, it is the time taken by the response to reach 50% of its final value, and that is denoted by Td. उसको हम Td से denote कर रहे हैं, which is equals to 1 plus 0.7 delta upon omega n. In some books this delta is replaced by zeta, so do not get confused with it, both the things are same. So now let us derive the derivation of delay time. Now consider the step response of second order system where t is greater than 0, and when delta, that is damping factor, lies between 0 and 1. So if your delta is in between 0 to 1 and it is greater than 0, t is greater than or equal to 0, so we get, or we have, the step response of second order system in this format. So this is the you can say step response of second order system. We have already derived this particular you can say formula of step response of second order system in previous videos, in previous lectures we have covered that, and the value of this step response or the response of the second order system is Ct is equals to 1 minus e raised to delta omega nt upon under root 1 minus delta square multiplied by sin omega d t plus theta. Now this omega d is the damped frequency and this omega n is a natural frequency. So damped frequency, when we are using some damping, then at that time the frequency gets damped, so it is called as damped frequency, and when we are not having any damping system, then at that time it is omega n, that is natural frequency. So the final value of step response is 1. You know that the final value of step response is 1 here, okay. So therefore this t becomes equal to, or it gets equal to Td, that is your delay time. So the value of step response will be 0.5, and when we substitute the value of this Td here is equals to 0.5, so these values, by putting these values in the equations,
नाउ हियर व्हाई वी आर सेइंग t इज इक्वल्स टू टी डी। देखो हम यहाँ पर t इज इक्वल्स टू टी डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस केस में जब हम बात करते हैं सो t इज इक्वल्स टू या जो स्टेप रिस्पॉन्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, सो इसकी वैल्यू है 1, इसलिए ये हमारे पास में इस तरीके से लिखा गया है। ओके, सो जब हम ये t जो है, ये जो टाइम t है, अब हमारे लिए ये टाइम t क्या हो जा रहा है, हम किसके लिए डिराइव कर रहे हैं, हम डिले टाइम के लिए डिराइव कर रहे हैं। इसके लिए ये t रिप्लेस हो जाता है किससे, td से। ओके, और हमारी td की वैल्यू कितनी रहती है, 0.5% ऑफ द फाइनल वैल्यू, 0.5% फाइनल वैल्यू के। सो हमारी फाइनल वैल्यू फिलहाल कितनी है, 1 है। सो इस 1 का जो भी है 50% हम लेंगे। सो 50% 1 का कितना है, ओके, 50% ऑफ 1 इज अगेन 0.5। सो इसलिए ये t इज इक्वल्स टू टी डी इज इक्वल्स टू 0.5 हम यहाँ पर इक्वेशन में ले रहे हैं। ओके, सो ये 0.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू डेल्टा ओमेगा एंड टी डी अपॉन 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी डी प्लस थीटा। ठीक है, सो इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो बाय यूजिंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन वी गेट डिले टाइम एज टी डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.7 डेल्टा अपॉन ओमेगा एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमको ये वैल्यू यहाँ पर मिलती है, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। रेडियंस में हम थीटा गिन रहे हैं, ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड में है। ओके, सो ये है हमारा डिले टाइम का डेरिवेशन। विल गो टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज राइज टाइम। सो राइज टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0% टू 100%। 0% से 100% तक पहुंचने का जो समय है रिस्पॉन्स का, हमारे आउटपुट का 0 से 100% तक पहुंचने का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं राइज टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी आर। सो ये जैसे डिले टाइम 50% का है, सो 100% पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइज टाइम। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए। ओके, जिसके अंदर डैम्पिंग नहीं किया गया है या कम डैम्पिंग इसके अंदर किया गया है। ओके, अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स है तो फ्रीक्वेंसी पर ऑब्वियसली कम हो जाती है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स है। सो कंसीडर इसके लिए हमको जो ड्यूरेशन कंसीडर करना है राइज टाइम का, वो हमको लेना है 10% से लेके 90%। सो फाइनल वैल्यू हमको 90% यहाँ पर कंसीडर करना है। ओके, सो 10 to 90% उसकी फाइनल वैल्यू हमको कंसीडर करना है, और इसको हम डिनोट करते हैं टी आर से। उसका इक्वेशन है टी आर इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ओके, सो हमारी यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में एक आधा डेरिवेशन पूछा जा सकता है राइज टाइम का, डिले टाइम का, पीक ओवरशूट का, सेटलिंग टाइम का। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे लिए टी आर जो है वो है राइज टाइम। सो एट t इज इक्वल्स टू t1 विच इज इक्वल्स टू 0, जब हम t1 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स है स्टेप रिस्पॉन्स ct क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर टाइम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। सो 0 अगर टाइम है तो रिस्पॉन्स भी कंप्लीटली 0 हमारे इक्वेशन के हिसाब से हो रहा है। सो वी द फाइनल स्टेप रिस्पॉन्स हमको पता है कि कितना रहता है, 1 रहता है। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या रहेगा, t2 रहेगा। देखो अभी हमारे पास में टीडी के लिए 0.5% हमने लिए थे। ओके, सो अब हमको यहाँ पर टीडी के बजाय क्या करना है, पहले तो t1 के लिए कंसीडर करना है, क्योंकि 0% पर हम एक निकाल रहे हैं और दूसरा 100% पे निकाल रहे हैं। तो दूसरा 100% वाला है हमारा t2 टाइम। ओके, सो t2 द वैल्यू ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स इज 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन, सो ct इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। सो t2 इज इक्वल्स टू 1 जब हम डालते हैं तो हमारा आउटपुट कितना आता है, 1 आता है। सो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू डेल्टा ओमेगा एंड t2 1 अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन ओमेगा डी t2 प्लस थीटा। सो ये 1 और ये 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो दिस होल इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों भी इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, इज इक्वल्स टू 0 हो जाते हैं। सो साइन ओमेगा, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो पूरी की पूरी इतना पार्ट है हमारे इक्वेशन का, ये जब 0 के साइड में जाएगा तो ये बट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन ओमेगा डी t2 प्लस थीटा बचेगा। सो इसको जब हम साइन इनवर्स लेते हैं इसका,
तो ये हमको मिलता है ओमेगा डी T2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई, और इसमें से जब हम T2 निकालते हैं जो हमारा राइज टाइम है, सो इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ओके, सो इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, so you get TR is equals to T2 minus T1, and therefore your value of TR becomes pi minus theta upon omega d. Okay, so हमारा rise time क्या रहता है? Rise time is the time taken to reach the final value from 0 to 100%. तो 0, so T1 कितना है हमारा इसमें से? T1 है हमारा 0 और TR है हमारा 100% टाइम, मतलब 100% रीच करने के लिए का समय। So TR becomes equal to, you can say TR is equal to T2. So यहाँ पर TR रिप्लेस कर दिया हमने T2 से और पाई माइनस थीटा ले लिया अपॉन ओमेगा डी। ये हमारा इक्वेशन है राइज टाइम का। ओके, उसी तरीके से डेरिवेशन ऑफ पीक टाइम हमको लेना है, तो पीक टाइम का जो डेरिवेशन है ये है पाई अपॉन ओमेगा डी। ओके, अब पीक टाइम मतलब क्या है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच द पीक वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम। जो मैक्सिमम वैल्यू है, फाइनल वैल्यू नहीं, इससे ऊपर की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पर रीच करने के लिए ये फाइनल वैल्यू जो है ये हमारा मीन वैल्यू है एक किस्म की। सो इससे ऊपर और हमारी वैल्यू जाती है रिस्पॉन्स की, तो ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स की पहली वैल्यू जो रहेगी वो रहेगा मेरा पीक टाइम। ओके, तो जैसे 0 से 1 ये मेरे फाइनल वैल्यू है। अब 1 के आगे भी हमारा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? जाने वाला है। सो जैसे कि यहाँ पर ये 1.05 की लाइन दिख रही है, सो इससे भी ऊपर हमारा रिस्पॉन्स गया है। ओके, सो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है टू रीच द पीक वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम, पहले समय के लिए, ओके, फर्स्ट टाइम के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा रिस्पॉन्स, तो वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं पीक टाइम, विच इज डिनोटेड बाय TP। सो अब हम क्या करेंगे? T के बजाय यूज करेंगे TP। So the first derivative of the response is 0. इसका first derivative क्या है? 0 है। So we know that the second step response of second order system for underdamped case क्या है? तो ये है। So यहाँ पर हम क्या करेंगे? CT को differentiate करेंगे with respect to T. Okay, first order derivative लेंगे, तो इसका first order derivative कुछ इस तरीके से आएगा। So d CT by dt is equals to 1 जो है कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, माइनस e रेस टू डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 1/√1 माइनस डेल्टा स्क्वायर ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी टी प्लस थीटा। और ये आगे का इक्वेशन, ये कुछ बहुत बड़ा इक्वेशन हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है। ओके, माइनस डेल्टा ओमेगा एन ई रेस टू डेल्टा ओमेगा एन टी अपॉन √1 माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। सो इसमें जब हम t इजिकल्स टू TP पुट करते हैं और हमको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेरिवेटिव है रिस्पॉन्स का, वो क्या है? 0 है। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस रिस्पॉन्स, दैट इज d CT अपॉन dt विच इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो हम इस इक्वेशन की जगह पर क्या पुटअप करेंगे? 0 पुटअप करेंगे और t इजिकल्स टू TP पुटअप करेंगे। सो वो 0 यहाँ पर आ गया और t इजिकल्स टू TP आ गया। सो t ने हर जगह पर रिप्लेस कर लिया है TP को, TP ने हर जगह पर t को रिप्लेस कर लिया है। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर हमको कुछ इस तरीके से इक्वेशन आगे नजर आता है, जिसमें साइन थीटा माइनस ओमेगा डी TP माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हमको दिखता है। इसको भी जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो थीटा वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है माइनस साइन ओमेगा डी TP इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन को अगर हम राइट साइड में लेके चल जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई जब होगा वो माइनस साइन, सो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल बिकम 0। सो ये माइनस साइन यहाँ से निकल जाता है, तो बचता है सिर्फ साइन ओमेगा डी TP इज इक्वल्स टू 0। सो इसको साइन इनवर्स लेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज पाई। ओके, तो इसलिए ओमेगा डी TP इज इक्वल्स टू पाई हमको यहाँ पर मिलता है, और हमको सिंस TP का फॉर्मूला चाहिए तो हम TP का फॉर्मूला अचीव करते हैं, विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी। सो ये भले ही छोटा फॉर्मूला दिख रहा होगा, बट इसके पीछे का डेरिवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है। ओके, सो हमको मेजरली न्यूमेरिकल छुड़ाने के लिए सिर्फ इतने ही पोर्शन की ज़रूरत है, सो इस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, अगला डेरिवेशन है पीक ओवरशूट का। सो पीक ओवरशूट का फॉर्मूला है
percentage of peak overshoot MP is equals to e raised to minus delta pi upon अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये 100% भी अगर हम हटा दिए तो MP का फॉर्मूला सिंपली हो जाता है E इज इक्वल्स टू MP इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस डेल्टा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। ओके, सो क्या रहता है पीक ओवरशूट? पीक ओवरशूट है इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ रिस्पॉन्स एट पीक टाइम। जो पीक टाइम है मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ से उसका जो डेविएशन हो रहा है फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स, सो इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम ओवरशूट। ओके, पीक ओवरशूट MP इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स का डेविएशन है ओके एट पीक टाइम, ओके एट पीक टाइम फ्रॉम फाइनल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। सो ये है हमारी फाइनल वैल्यू 1। ओके, यहाँ से ये है हमारा मैक्सिमम क्या बोलेंगे रिस्पॉन्स या मैक्सिमम रिस्पॉन्स। सो ये है हमारा पीक टाइम। ओके, सो पीक टाइम और इस फाइनल वैल्यू के बीच का जो डेविएशन है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, या इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट। दैट इज द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ पीक टाइम। पीक टाइम का मैक्सिमम डेविएशन ऑफ पीक टाइम फ्रॉम द फाइनल वैल्यू। इन दोनों के बीच का क्या है ये डिफरेंस है। ओके, सो जैसे यहां पर जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा फाइनल वैल्यू, ये है पीक टाइम। ओके, यहाँ तक का टाइम जो है 0 से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ये पीक टाइम है। सो ये पीक टाइम और इस मैक्सिमम वैल्यू या जो हमारी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो भी डेविएशन है, जो भी डिफरेंस है, वो है मेरा पीक ओवरशूट। ओके, उसको हम बोलते हैं पीक ओवरशूट विच इज गिवन बाय MP एंड इट कैन बी रिटन एज MP इज इक्वल्स टू CTP बिकॉज पीक टाइम यहाँ पर आ रहा है माइनस C ऑफ इंफिनिटी। ओके, सो C ऑफ इंफिनिटी क्या है? इज द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स। क्योंकि कैसा है ये जो फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू पर हमको स्टेडी स्टेट मिलेगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है, जो फाइनल वैल्यू है, इस पे स्टेडी होगा। ओके, इससे मतलब हम टॉलरेंस रखते हैं, इसमें मार्जिन्स रहती है। ओके, सो इस फाइनल वैल्यू के बहुत क्लोज हम क्या करते हैं, हमारा जो भी है स्टेडी रिस्पांस कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो रिस्पांस दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा कर्व दिख रहे हैं ना, इस तरीके के, सो ये हमारे विद इन रेंज है। ओके, ये विद इन रेंज है, ये दोनों जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं इनके बीच में है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ये स्टेडी रिस्पांस है। ओके, वहीं पर इसमें जो डेविएशंस हमको देखने मिल रहे हैं इस पोर्शन में, ये डेविएशंस काफी ऊपर नीचे हैं, इसलिए इसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस बोल रहे हैं। तो स्टेडी रिस्पांस इज वेरी क्लोज टू द फाइनल वैल्यू। ओके, देयरफॉर हम क्या बोलते हैं कि C ऑफ इंफिनिटी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द रिस्पांस। कौन सा रिस्पांस? स्टेडी रिस्पांस। एंड CTP इज नथिंग बट पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द response. Okay, now let us consider that at t is equals to TP, the response CT will become, yes, CT क्या हो जाएगा, t की जगह पर हर जगह पर TP आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, t की जगह पर TP आ जाएगा हर जगह पे। ओके, और TP की वैल्यू क्या है मेरे पास में, यस, पिछले डेरिवेशन में हमने निकाली है, TP की वैल्यू इज पाई अपॉन ओमेगा डी। सो ये पाई अपॉन ओमेगा डी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, हर जगह पर डाल देता हूँ TP की जगह पर। ओके, सो इन राइट हैंड साइड में डाल दूंगा उसको। सो ये राइट हैंड साइड में डालने पर C ऑफ TP क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू माइनस डेल्टा ओमेगा पाई अपॉन ओमेगा डी अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन ओमेगा डी पाई अपॉन ओमेगा डी प्लस थीटा। ओके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर हमको पता है कि साइन थीटा क्या है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर है। ओके, सो विल गेट C ऑफ TP एज 1 प्लस ई रेज टू माइनस डेल्टा पाई अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर. ओके, अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर. ओके, so by substituting this value of CTP is equals to 1 plus e raised to minus delta pi upon under root 1 minus delta square and C infinity in the peak overshoot equation, इस इक्वेशन में डाल देंगे दोनों भी चीज़ों की वैल्यू. ओके, तो हमको हमारा मैक्सिमम या जो भी है हमारा पीक ओवरशूट है उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा. सो एम पी विल बी इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू माइनस डेल्टा पाई अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर. ये मेरा पहला पोर्शन है सी ऑफ टी वाला. ओके, सी ऑफ टी एंड माइनस 1, ये 1 क्यों लिया, सी ऑफ इन्फिनिटी क्या है मेरा इज इक्वल्स टू 1 है. क्यों 1 है, क्योंकि मैंने क्या बताया है आपको थोड़ी देर पहले कि हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या कंसीडर करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे. यहाँ पर हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ रहा है. सो देयरफॉर सी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू व्हाट 1. सो ये मेरा इक्वेशन आ जाता है. ये -1 ये +1 गेट्स कैंसल्ड. सो मेरा मैक्सिमम पीक ओवरशूट का इक्वेशन आता है ई रेज टू माइनस डेल्टा बाय पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर. और इसी को जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट मिलता है. ओके, सो इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट बढ़ता जाएगा, ओके, तो वैसे वैसे हमारा डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज होता जाएगा. और यू कैन से जैसे जैसे हमारा परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, ऊपर है. ओके, उसी तरीके से राइज टाइम के बारे में भी बात कर सकते हैं हम. बाकी के बारे में बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे पीक टाइम एंड डैम्प फ्रीक्वेंसी जो है तो वो दोनों भी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, टीपी और ये ओमेगा डी. क्योंकि यहाँ पर पाई अगर हमने कांस्टेंट है तो पाई कांस्टेंट रहने पर टीपी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा डी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेर बिकॉज पाई इज कांस्टेंट. उसी तरीके से इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं कि टी आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा डी के. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेटलिंग टाइम. ओके, सो डेरिवेशन ऑफ सेटलिंग टाइम. हमको ऑलरेडी पता है कि जो सेटलिंग टाइम है किसी रिस्पांस का, ये वो टाइम है जहां पर रिस्पांस हमारा जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है. मतलब जहां से हमारा रिस्पांस हमारे मार्जिन के अंदर वैरी होना शुरू होता है या कम वैरी होता है, वहाँ पर हम हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो रहा है ऐसा बोलते हैं. और वहाँ पर से हमारा सेटलिंग टाइम शुरू होता है. सेटलिंग मतलब क्या, सेटल होना शुरू हो गया है, हमारा रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, सेटल होना शुरू कर रहा है. ओके, सो इट इज द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स दैट इट इज द टाइम टू रिस्पॉन्स इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिस्पॉन्स टू रीच द स्टेडी स्टेट कंडीशन. ओके, अब इसको हम मार्जिन में कंसिडर करते हैं, जैसे कि 0.95. अगर हमारा स्टेडी स्टेट हम 1 पे कंसिडर कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू 1 है, तो 1 से 0.5 नीचे और 0.5 ऊपर. सो इन दोनों के बीच में अगर हमारा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है इन दोनों वैल्यूज के बीच में, तो हम बोलेंगे कि हमारी सिस्टम कौन से स्टेट में आ गई है, स्टेडी स्टेट में आ गई है. तो ये स्टेडी स्टेट स्टार्ट होने के लिए, जीरो से लेके ये स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए जो समय लग रहा है उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम. ओके, अब सेटलिंग टाइम के दो टाइप है. सेटलिंग टाइम फॉर 2% टॉलरेंस बैंड, मतलब 2% टॉलरेंस बैंड के लिए, और एक 5% टॉलरेंस बैंड के लिए. मतलब हमारे पीक वैल्यू से मैक्सिमम 2%, मतलब ऊपर 2%, नीचे 2%, और उसी तरीके से 5% के लिए, तो ऊपर 5% और नीचे 5% टॉलरेंस बैंड के लिए हम सेटलिंग टाइम निकालते हैं. एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दिस ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट ऑफ सिग्नल. मतलब 4 टाइम्स टाउ रहता है. 4 टाइम्स क्या रहता है, टाउ. ts इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टाउ. और टाउ क्या है मेरा, सो टाउ इज 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा एन. ओके, 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा एन. इसीलिए मेरा जो ts है इट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन डेल्टा ओमेगा एन. ओके, विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स योर टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट क्या है, तो 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा एन है.
ओके, सो इसका सबसे आसान इक्वेशन है। सो हम जो टाइम कांस्टेंट है हमको पता है 1/Δ है। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बोथ द सेटलिंग टाइम ts एंड टाइम कांस्टेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग रेशियो। जो टाउ है ये भी डेल्टा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी तरीके से ts जो है ये भी डेल्टा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दूसरी चीज, बोथ सेटलिंग टाइम ts एंड टाइम कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम गेन। इसमें सिस्टम गेन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इवन द सिस्टम गेन चेंजेस, सिस्टम गेन चेंज होने पर भी हमारा सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। वेयर एज हमारा गेन चेंज हुआ तो उससे हमारे इस पर कोई भी इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। सो ये हमारे सभी टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस है, उनके फॉर्मूले एक जगह पर मैंने इस स्लाइड में लाए हैं। आप चाहे तो ये स्लाइड रेफरेंस के लिए हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल